If you're serious about starting freelancing in 2025, you are at the right place. This is the only video you will need to watch about starting freelancing. If you watch this video till the end and execute everything properly, it is impossible that you will not get result because I've covered everything. How you should start freelancing, how you should approach freelancing, how is AI changing everything, how you can leverage AI tools and make most out of it. And it's not just me. I've brought in 4 successful freelancers to share their stories, their journey of how did they started, how did they close their first client, what were the common mistakes they made in their journey. Some of them are college students, so how do they manage college with freelancing and what do they think is the future of freelancing with the advent of AI changing everything. So this video is going to be fully value packed. I would recommend you to sit at a quiet place, take a paper and pen with you and make notes. But before moving forward, अगर आप ये चैनल पे आज पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए. So let's get right into the video. How to become a problem solving freelancer and leverage AI in 2025. तो पहले हम लोग बात करेंगे about the harsh truth about the freelancing market and future of freelancing क्या होने वाला है. तो मेरे हिसाब से जो ओल्ड स्कूल फ्रीलांसिंग है दैट इज कंप्लीटली डेड और इट विल डाई इन नेक्स्ट 2 to 3 months. ठीक है, जो भी लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वीडियो एडिटिंग ले लो, ग्राफिक डिजाइन ले लो, कंटेंट राइटिंग ले लो, उनको काम मिलना कम हो गया है, मार्केट में रेट्स भी गिरना स्टार्ट हो गई है. Only the top players are making money. If there are 10 people, only 3 or 4 out of them are now making money. जो भी simple captions वाले editors थे, they are replaced. जो content writers थे, जो जिनको basic knowledge थी या mid level भी थे, वो भी replace हो चुके हैं. Because the speed at which AI is improving and getting better, that is crazy. We can't even imagine कि क्या हो रहा है market में. And जो भी top लोग हैं, उनको भी एक चीज ऐड करनी पड़ेगी कि they will have to see कि उनका जो सर्विस है उससे क्लाइंट को ROI क्या मिल रहा है. Just selling a skill won't be enough in 2025 और moving forward, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो AI भी कर सकता है. आप बेस्ट कंटेंट राइटर हो, आपसे भी बेस्ट कंटेंट राइटर्स दुनिया में अवेलेबल है एंड उन जैसा AI लिख सकता है आज के टाइम में. Number 3 is going to be problem solvers will make the real money. People who have basic understanding about business and who know how to leverage this AI tools and help the client to solve their problem. Those folks are going to make the real money. And हम लोग इस चीज को डिटेल में समझेंगे. आप कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, सीख सकते हो, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे इन द वीडियो. सो स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ क्लाइंट्स हायर यू. ठीक है, एज अ फ्रीलांसर जब भी आप कोई स्किल सीख रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एजेंसी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ये एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट आपको क्यों हायर कर रहा है. क्यों हायर कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो एंड गोल है उधर तक वो अचीव कर पाए. सोशल मीडिया मार्केटर हो, वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, द गोल ऑफ द क्लाइंट इफ यू आर अ वीडियो एडिटर is to get more views, is to get more sales, is to get more leads. If you are a graphic designer, the client wants the graphic to look good and वहां से conversions आए. अगर thumbnail डिजाइन कर रहे हो तो ज्यादा views आए, CTR ज्यादा हो, तो you have to understand what your client really wants. यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है. They don't want a video editor. Your client wants more views, more leads and more sales. So as a freelancer भी आपको ये समझना पड़ेगा. This thing was only relevant for agencies पहले, क्योंकि people didn't care that much about things when they were getting started, but the surface level things are solved by AI right now. So if you want to survive as a freelancer, you will have to keep these things in mind if you want to build a sustainable business. There is also a giveaway in this video. I'm giving away 5 one-on-one consultations call with me for completely free, which costs around 3,000 rupees. But this is not for beginners. This is for freelancers and agency owners who are making more than 50,000 per month, but they're struggling to make more than that. So if you are someone in that category, you can check the details in the description, but please make sure you are making more than 50,000 per month, because this giveaway is only for freelancers and agency owners who are making more than 50,000 per month, but struggling to scale more than that. Now let's come to the solution कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर का माइंडसेट कैसे डेवलप करें और एक प्रॉब्लम सॉल्वर फ्रीलांसर हम लोग कैसे बन सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रोड मैप. हम लोग हर एक चीज को इन डेप्थ में समझने वाले हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई. ठीक है, सो द नंबर 1 स्टेप इज गोइंग टू बी टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. पहले हम लोग फ्रीलांसिंग की जब बात करते थे, हम लोग बोलते थे कि पिक अ स्किल, लर्न दैट स्किल एंड देन सेल दैट स्किल. बट अभी हम लोग स्किल्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स. आपको एक इंडस्ट्री पकड़नी पड़ेगी, उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है.
एंड देखना पड़ेगा कि आप उसको एआई के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ो, 3 प्रॉब्लम में आप वापस से एंटैंगल्ड हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक इंडस्ट्री पकड़ी, 3 प्रॉब्लम्स निकाले उसके, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड देन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे। देन आपको वो स्किल सीखना है। हो सकता है कि आपको कुछ स्किल सीखना भी पड़े, हो सकता है कि कुछ स्किल्स आप एआई के थ्रू भी ऑटोमेट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग इन डेप्थ एग्जांपल के साथ समझेंगे मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 2 इज गोइंग टू बी लर्न द टूल्स। अभी वो जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो आपको सीखना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी द नंबर 2। वो टूल्स भी सीखने पड़ेंगे एंड जो भी स्किल्स उसके लिए नेसेसरी है वो आप सीखोगे। नंबर 3 इज गोइंग टू बी टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स का पेन पॉइंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, एक रियल एस्टेट बिजनेस ओनर का सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम हर एक बिजनेस का होता है टू गेट सेल्स। हर एक बिजनेस को कस्टमर चाहिए एंड लोगों को कस्टमर नहीं मिलते। तो पहला प्रॉब्लम हो गया टू गेट क्लाइंट्स। सेकंड प्रॉब्लम इज टू मैनेज लीड्स। रियल एस्टेट वाले एड्स रन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनके पास बहुत लीड्स आती है, तो उसको मैनेज करने में उनको दिक्कत होती है। एंड थर्ड पेन पॉइंट विल बी टू कन्वर्ट दोस लीड्स। अभी लेट्स से किसी ने एड्स रन किए और 2000 लीड्स आ गई, तो 2000 लोगों को कॉल करने में ही 1-2 महीने लग जाते हैं। आपने 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, देन आपने देखा कि इन तीनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है। मेरे हिसाब से हर एक बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कस्टमर्स लेके आना, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना। तो लेट्स से आपने सोचा कि मैं सेल्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बिजनेसेस के लिए या रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए। ठीक है, आपने एक नीश पकड़ लिया, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अभी आपने देखा कि मैं उनके सेल्स कैसे बढ़ा सकता हूं। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेट्स से आप एड्स रन कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, आप फनल्स क्रिएट कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन से एआई टूल्स है जो आपको वो ऑटोमेट करने में हेल्प कर सकता है, और कुछ कुछ चीजें अगर मैनुअली भी करनी पड़ रही है तो वो स्किल्स मैं कैसे सीख सकता हूं। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से यहाँ पे जा रहे हैं। अगर हम लोग ये अप्रोच से जाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पैसे नहीं कमा सकते। इफ यू आर एबल टू ब्रिंग कस्टमर्स इन एनी बिजनेस, दे विल 100% पे फॉर यू। एंड देयर इज नो बिजनेस जिनको कस्टमर्स की जरूरत नहीं है। हर एक बिजनेस को कस्टमर्स की जरूरत है। और अगर आप ये स्किल क्रैक कर सकते हो तो यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी माय फ्रेंड। अभी एक बार आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है और उसके ये 3-4 पॉसिबल सॉल्यूशंस है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टू टेस्ट दैट सॉल्यूशंस एंड अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट या ये पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रैंडम पर्सन टू ट्रस्ट ऑन यू। तो आई वुड रेकमेंड टू प्रोवाइड फ्री ट्रायल्स टू 5 पीपल। ठीक है, तो पहले जो आपके 5 क्लाइंट्स हैं उनको फ्री ट्रायल प्रोवाइड करो। उनके बिजनेस में ये चारों पॉसिबल सॉल्यूशंस टेस्ट करके देखो कि एक प्रॉब्लम है, इसके 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस है, ये आपने चारों टेस्ट किए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये चारों में से कौन सा काम कर रहा है। एंड जो भी काम कर रहा है उसको आप डबल डाउन करके नेक्स्ट मंथ टूवर्ड्स अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। एंड इससे आपको 2 चीजें मिल जाएंगी, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंडस्ट्री में कौन सा सोल्यूशन काम कर रहा है। तीसरा, आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाएगा और अभी आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क है। अभी आप जब 6वें क्लाइंट को पिच करने जाओगे तो आप बोल सकते हो कि मैंने ये 5 क्लाइंट के लिए काम किया है। एंड अगर आपका जो सोल्यूशन है वो एक्चुअल में काम करता है, ये 5 कस्टमर्स भी आपके साथ स्टिक होंगे। हो सकता है कि पहले 2 क्लाइंट के साथ आप फकअप कर दो, गलतियां हो, तो ये गलतियों से आप सीख के बाकी के जो 3 क्लाइंट्स उनको कन्वर्ट कर सकते हो। और 6 क्लाइंट से तो आपके लिए काफी चीजें आसान होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को समझने की बात की, उनके पेन पॉइंट को समझने की बात की। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में आया होगा कि हम लोग इंडस्ट्रीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं विद लोएस्ट कंपटीशन एंड उनके पेन पॉइंट को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए भी जीपीटी को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हे जीपीटी, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एंड मार्केटिंग agency in India. Give me 20 industries / niches with lowest competition and highest demand. Online healthcare, Ayurvedic herbal product brands, regional language edtech, senior citizens, D2C home decor brands, legal compliance and tech startups, sustainable organic farming brands, स्पेशल नीड्स एजुकेशन सिस्टम्स, ये सारी चीजें आपके पास इतने सारे नीचेस आ गई है।
तो अभी आपको और डिटेल में रिसर्च करनी है तो कैसे कर सकते हो? लेट्स से अभी हम लोगों ने ये पिक कर लेते हैं हम लोग, ऑनलाइन हेल्थ केयर फॉर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज. आई एम प्लानिंग टू cater my marketing services, but I'm confused what problems to solve. What are their major pain points? ये आपको उनके मेजर 3 पेन पॉइंट्स बता देंगे. Lack of trust awareness. Most people in tier 2, tier 3 towns are skeptical of online healthcare consultations, medicine delivery, diagnostic. They either don't know such services exist or they're worried about scams like fake doctors. Local influencers, vernacular content, and educational campaigns are really missing. Low digital literacy. Even if people want to use the services, many aren't comfortable with apps, websites, or online payments. The confusion of how to book appointment, hyper local competition, logistics. What marketing services can actually solve this? आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो वो भी आपको चैट जीपीटी ने बता दिया. Vernacular content marketing, videos, WhatsApp campaigns, local influencers in regional languages, community based campaigns, health camps, partnership with local doctors, trust building strategies. तो ये सारी चीजें आप अपने सर्विसेज पे इंटीग्रेट कर सकते हो. बट इनका मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये अभी लोगों ने सब प्रॉब्लम्स बता दिया है, बट मेन प्रॉब्लम है कस्टमर्स लेके आना. तो हम लोग सिर्फ सेल्स पे भी अगर फोकस करते हैं तो भी काफी चीजें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एक हो गया सेल्स, दूसरा हो गया कस्टमर सपोर्ट. जो भी डॉक्टर्स के पास फोन आता है, कभी कभी हॉस्पिटल्स बिजी होती है तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो एआई एजेंट हम लोग वहां पे लगा सकते हैं जो कॉल रिसीव करे, इनबाउंड कॉल रिसीव करे, आउटबाउंड कॉल्स कर पाए अगर कोई कॉल मिस होता है. तो ये सारी चीजें भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू एआई एजेंट्स. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक इंडस्ट्री पकड़ ली. उनके जो 2-3 प्रॉब्लम्स है वो सारे इंडस्ट्री में सेम है. अगर आप इसमें भी देखोगे लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अवेयरनेस, इसकी वजह से ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे. लो डिजिटल लिटरेसी, इसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है. तो उनका मेजर पेन पॉइंट इज टू गेट मोर सेल्स. तो हमको ये सोचना है कि हम लोग उनके लिए और सेल्स कैसे लेके आ सकते हैं. तो इनके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे थ्रू कंटेंट क्रिएशन, एंड उसके साथ हम लोग एड्स भी रन करेंगे ताकि हमको जल्दी से रिजल्ट्स मिल पाए. क्योंकि दिस क्लिनिक्स डोंट गिव अ फक अबाउट कंटेंट, लुकिंग एस्थेटिक, इंस्टाग्राम फीड और सारी चीजें. उनको चाहिए सेल्स. जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हर एक बिजनेस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज सेल्स. तो हमको कंटेंट क्रिएट करना है ताकि अगर कोई अपने पेज पे आ रहा है तो उसको ऐसे नहीं लगे अरे ये फेक है या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो कुछ कंटेंट हम लोग डाल सकते हैं, एंड कंटेंट को भी हम लोग बिना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बना सकते हैं. लेट्स से एक डॉक्टर है, उसका हम लोगों ने 10 मिनट का वीडियो बना लिया, उसका हम लोग एआई एवेटार क्रिएट कर सकते हैं, रियलिस्टिक लुकिंग एआई वीडियोस बना सकते हैं विदाउट इवन इन्वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ द डॉक्टर्स. Because doctors are very busy people, they don't even get time to spend with their family. तो अगर आप उनको बोलोगे कंटेंट क्रिएट करने के लिए तो they will get frustrated and they won't be able to do it consistently. But let's say he doesn't want to create an AI avatar, so you can help him to create content with minimal effort. लेट्स से कि आप उसके महीने के 3 से 4 घंटे ले रहे हो एंड पूरा मंथ का कंटेंट आप बैच रिकॉर्ड कर रहे हो. पहले से आपने सारी चीजें स्क्रिप्ट कर ली, आप टेलीप्रॉम्प्टर कैरी कर रहे हो, उसको बस देख के बोलना है वीडियो में. तो इससे कैसा है कि 3 से 4 घंटा उसका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, उसका कंटेंट भी जा रहा है, उसको आप एड्स भी रन करवा रहे हो और आप ज्यादा कस्टमर्स भी लाने के लिए हेल्प कर रहे हो. दिस इज हाउ यू पिक अ प्रॉब्लम, पिक एन इंडस्ट्री एंड सॉल्व इट. You need to understand what that person wants. If you don't understand that and you are like अरे वीडियो एडिटिंग ले लो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ले लो, मैं आपके लिए कंटेंट बना दूंगा. बट कंटेंट बनाने से होगा क्या? कंटेंट क्यों बनाते हैं भाई? ताकि ट्रस्ट बिल्डअप हो कि दिस पर्सन इज रियल, हाँ इनका कुछ एग्जिस्टेंस है, he knows what he's talking about. Let's say if tomorrow I am selling a course about freelancing, और आप मेरे YouTube पे आके देख रहे हो तो आपको पता है कि I know about freelancing, I've done freelancing in the past, I've made a lot of money through it. तो आप मेरा कोर्स खरीदोगे. बट लेट्स से कि अगर मेरा कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है और मैं एड्स रन कर रहा हूं, तो आप जाके मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करोगे तो भाई ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये स्कैमर भी हो सकता है. तो दिस इज व्हाई यू बिल्ड कंटेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी. बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस तो कंटेंट के थ्रू बिजनेस बिल्ड करना मुश्किल है. अगर आप उसको पहले आप कंटेंट क्रिएट करते हो एंड बाद में बिजनेस क्रिएट करते हो देन इट्स फाइन. बट पहले से बिजनेस है एंड आप कंटेंट के थ्रू स्केल करने का सोच रहे हो, इट इज डिफिकल्ट. इट कैन बी डन इन 3 to 6 months, बट आपको फाउंडेशन में टाइम लगता है. बट आपको समझना पड़ेगा कि वो बिजनेस को कंटेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सेल्स चाहिए. तो यू सॉल्व फॉर व्हाट द अदर पर्सन वांट.
हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने हमारा सर्विस डिसाइड कर लिया है कि हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वीडियो कंटेंट के थ्रू और कस्टमर्स लाने में हेल्प करेंगे। ये हम लोग कैसे करेंगे? कंटेंट के थ्रू, और हम लोग एड्स भी रन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एआई को पूछते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीजें ऑटोमेट हो सकती है, ठीक है। एंड एआई को पूछेंगे कैसे ऑटोमेट कर सकता है, कैसे सीख सकता है। तो नाउ यू डोंट नीड अ कोर्स टू लर्न एनीथिंग। लिटरली एआई कैन गिव यू अ कंप्लीट रोड मैप ऑन हाउ यू कैन लर्न एनी स्किल एंड गो इन डेप्थ। एआई टूल्स कौन सा आपको हेल्प कर सकता है वो भी आप एआई से पूछ सकते हो। If you have basic knowledge about business and if you can play with AI, your life is like 90% sorted. So now let's do it practically. Hey GPT, I have planned to provide professionals and I want to automate my backend as much as possible, but not compromise on the quality. So, can you tell me what aspects can be automated and what things I will have to learn and do manually? Lead generation for healthcare professionals using video content and ads is super relevant, and automation is only the way to scale. Here's breakdown of what can be automated, what needs a manual touch, what you can automate: outreach and lead capture, automated DMs, email to prospects, landing pages with forms, appointment scheduling, ad campaigns management, preset ad templates, Canva in video, बल्क अपलोडिंग एंड स्केड्यूलिंग ऑफ एड्स, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग। ये सारी चीजें अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप एआई को ये कॉपी करके सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोल सकते हो। सीआरएम एंड लीड नर्चरिंग, लीड्स फ्लो डायरेक्टली इनटू अ सीआरएम। जो भी आपको लीड्स आ रही है एड्स के थ्रू वो डायरेक्टली आपके सीआरएम में ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। ऑटोमेटेड फॉलोअप्स हुई है व्हाट्सएप, लेट्स से किसी पेशेंट ने आपका अपॉइंटमेंट लिया है फॉर साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट, तो जैसे ही वो बुक करता है उसको व्हाट्सएप पे रिमाइंडर जाएगा। और आप लेट्स से कि उसने कल 5 बजे का अपॉइंटमेंट सेट किया है तो कल 4 बजे या कल दोपहर को 1 बजे उसको एक मैसेज जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो। पहले ये सारी चीजें मैनुअल करनी पड़ती थी या इसमें बहुत टाइम लगता था। वीडियो कंटेंट वर्कफ्लो, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स फॉर स्क्रिप्ट आइडियाज, बेसिक वीडियो एडिटिंग टेम्पलेट्स, ये सारी चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो। व्हाट नीड्स मैनुअल वर्क, वीडियो स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग। You can use AI to draft, but you need to review and tweak for medical accuracy and context. ये medical content है तो कुछ फकअप ना हो, इसीलिए आपको AI बोल रहा है कि आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। फाइनल वीडियो एडिटिंग, हाँ वीडियो एडिटिंग में लेट्स से यू वांट सम बी रोल, सम मोशन ग्राफिक्स, तो you'll have to hire एडिटर। क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए आपको ही बात करनी पड़ेगी। एड कॉपी राइटिंग फॉर मेडिकल हेल्थ केयर, इसके लिए भी क्यों है क्योंकि ये मेडिकल थिंग है इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। नहीं तो एड कॉपी राइटिंग के लिए एआई इज द बेस्ट। यू कैन यूज क्लॉड, यू कैन यूज जीपीटी। सिंपल फंडा है यार। देखो कैसा है, ये सारी चीजें पहले मैनुअली करनी पड़ती थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे एड्स चलता है। बट अभी आप जीपीटी को बोल सकते हो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मुझे ऐसे टॉप परफॉर्मिंग 10 एड स्क्रिप्ट्स दे, उसको आप स्टडी कर सकते हो। उसमें जो फ्रेमवर्क यूज किया आप बोल सकते हो कि वही फ्रेमवर्क यूज करके मेरे क्लाइंट्स के लिए तू 4 एड स्क्रिप्ट बना। फिर वो 4 एड्स को आप टेस्ट करोगे, कौन सा बेस्ट काम कर रहा है उसके ऊपर आप डबल डाउन करोगे। वॉट यू विल नीड टू लर्न, ओके। ऑटोमेशन टूल्स यू कैन एक्सप्लोर, कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हो वो भी एआई ने आपको बता दिया है। तो ये जो भी स्किल्स एआई ने हमको सीखने के लिए बोला है हम लोग उनको उसको बोलेंगे कि मेक अ रोड मैप फॉर मी। आई वॉन्ट यू टू मेक अ रोड मैप for me on how to learn this skills। आप इसको और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, मैं अभी आपको बस करके दिखा रहा हूँ। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि आस्क मी 10 क्वेश्चंस टू बेटर अंडरस्टैंड माय बिजनेस, तो आपको और डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज देगा वो।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड मैनेजमेंट, आप एड्स कैसे रन कर सकते हो, एड्स रन करना कैसे सीख सकते हो, आपको कंप्लीट रोड मैप दे दिया है उसने। वीडियो स्क्रिप्टिंग आप कैसे सीख सकते हो, कौन से कोर्स लेना चाहिए, फ्री कोर्स कौन सा अवेलेबल है, ये भी बता दिया है। So guys, if you really want to learn something and you have that desire, you can simply come to ChatGPT and ask your questions. मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक फाउंडर ने अपने टीम को बोला हुआ है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे पास आने से पहले आपको ChatGPT के पास जाके क्वेश्चन पूछना है। फिर भी अगर आपका जो क्वेरी है या जो इशू है अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपको मेरे पास आना। तो सिंपली लाइफ में ये एक फंडा बना लो कि कुछ भी प्रॉब्लम है पहले जीपीटी के पास जाना है, फिर सॉल्व नहीं हो रहा देन यू कैन गो टू एन एक्सपर्ट और अ कंसल्टेंट और समवन हु कैन हेल्प यू। बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं उनके सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनको पहला क्लाइंट नहीं मिलता। लोग स्किल भी सीख जाता है, लोग इंटर्नशिप भी कर लेते हैं, बट उनको पहला क्लाइंट मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आपने अपना पहला क्लाइंट कैसे क्लोज किया। हाय, मैं निशांत हूँ एंड मैं एक फ्रीलांसर हूँ। तो जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, तो मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता था, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट किया था। पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर था, मैंने फोटोशॉप वगैरह स्टार्ट किया था सीखना। फिर जब मैंने अच्छे से सीख लिया, जब मुझे सारे वगैरह पोस्टर्स वगैरह बनाने जब आ चुका था कि हाँ मैं ठीक ठाक बना ले रहा हूँ, तो फिर मैंने अपने लोकल में जो शॉप्स वगैरह होते थे, मैंने उन्हें थोड़ा सा रीच आउट करना स्टार्ट किया कि मैं उनके दुकान विजिट करता था एंड मैं बोलता था कि आपका मैं पोस्टर बना सकता हूँ। तो वैसे ही करके मुझे एक अच्छा क्लाइंट मिला था जो लोकल मार्केट में ग्रोसरी डिलीवरी ऐप था। तो मैंने उससे कॉल किया और फिर मैंने उन्हें कहा कि आपकी मार्केटिंग के लिए मैं अच्छे पोस्टर्स बना सकता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा रीच थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आके मिल लो। तो फिर मैं उनसे मिलने गया, फिर बातचीत हुई एंड फिर हमारा डील डन हो गया। फिर मैं मंथली उनके लिए काम करने लगा। तो फर्स्ट क्लाइंट मेरा वही था, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। तो जैसे कि मैं तो ऑलरेडी खुद का कंटेंट तो मैं पिछले 4-5 सालों से बना रहा हूँ, तो खुद के लिए जो बनाता था तो मैं एडिटिंग भी करता था। तो धीरे धीरे मुझे एडिटिंग और भी सीखने का इंटरेस्ट हुआ, मैं सीखता गया। तो ग्राफिक डिजाइनिंग से फिर वीडियो एडिटिंग मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। फिर मैंने उसी क्लाइंट को वीडियो एडिटिंग भी पिच किया था कि हाँ मैं आपके लिए वीडियो भी एडिट कर सकता हूँ। फिर वहाँ से धीरे धीरे क्लाइंट आते गए। फिर इंस्टाग्राम वगैरह से कुछ क्लाइंट को रीच किया, वहाँ से कुछ काम आने लगा। So, bro, from past years, I've been freelancing. So I started in back in 2021. For the video editing, I used, as I said earlier, it was like hobby. तो मैंने स्टार्ट किया था फॉर कंटेंट प्रोडक्शन से. सो आई यूज टू अपलोड द एडिट्स. तो एक एडिट उसमें काफी वायरल गया था. इट ऑलमोस्ट गॉट अराउंड 1.4 मिलियन व्यूज. एंड इट ऑल्सो गॉट फीचर्ड ऑन गुजरात टूरिज्म. सो उससे मुझे प्योर 600 लीड मिली थी जस्ट फ्रॉम अ सिंगल वीडियो. But let's say if you didn't have that video pop up, how would you go about finding your first client? If I didn't upload the video like that, so I what I would do is like I had a previous experience for freelancing. मैं क्या करता कि I would approach the people. और जैसे इंडियन मार्केट हो गया, so the best strategy is to like find mutuals. Word of mouth से भी काफी फर्क पड़ता है. और what we can do is like just approach them. अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल सेट, जस्ट अप्रोच द पीपल एंड जस्ट आस्क फॉर लाइक वर्क. 99% इफ लाइक द वन थिंग आई हैव नोटिस इज लाइक जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द टैलेंट. वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं टैलेंट को. सो अगर इवन आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होगा बट उनको लग रहा है कि दिस गाय हैज पोटेंशियल, दे विल डेफिनेटली help you up in whatever ways they can. So hello everyone, my name is Ashurat Morie and I have been into like online marketing space from last 5 years. When I started in 2020, I searched out like what are the platforms, because at that time like the trend of personal branding or marketing yourself through social media, all that stuff, that wasn't that. It was any conventional thing that you build your portfolio, you show some work and then list yourself on those platforms, right? So I started with Fiverr, Upwork. I had already edited some videos in my college days, which I just posted on that just for the thing. Okay. And every day I used to iterate with different gigs. Like there are 7 gigs. I treated it like a 7 different opportunities. I created different gigs around video editing. I saw the successful interviews of people on Fiverr, all that stuff, and try to implement those things, SEO, all that stuff. So for me, the first client came through Fiverr. I see that there is a lot going on. Like there are different ways to do it: cold email, growing your own personal brand, and then showing that as a social proof that yeah, okay, I can grow my own account, so I can help you do the same. What are some
common mistakes you observe people making in freelancing space when they get started, and what are some mistakes you have made that you want other people to avoid? Yeah, so hi, I am Sarthak, and I am a second year pursuing a BTech. I think people, let's say a level 4 on video editing, and I've started, like, someone has hired me, and like they are eventually anyone who hires you, they try to level you up. They teach you stuff and etc. etc. So you might go from level 4 to 10. I think many people just get stuck on the level 10. Hmm. I think that is a mistake that I have done. Like being stuck on level 10 and not thinking about getting to level 15 or level 20. So what you're saying So is, yeah. even after you get at a particular level, the learning shouldn't stop. You should keep growing as a freelancer. Yeah, and learn anything about video editing. Like, let's say, learn about color grading, which might not be in your domain still. Learn about color grading and go for After Effects if you're just in Premiere Pro. Go in After Effects, go learn the, like, what do we say? The advanced as to After Effects, etc. etc. So I think like people should do that. Freelance में in the starting, like what is the common mistake was like how to like approach the clients. थोड़े लोग होते हैं मतलब कैसे लिंक what I've noticed in the previous meeting we did like a month ago, like people share the links but वो उसमें access नहीं, like Hmm. whatever you are doing please थोड़ा serious होके करो कि कैसे how can you improve the things. like अब मैं अगर किसी को यूएस में पिक कर रहा हूँ, he does not knows me, वो पर्सनली मुझे जान नहीं रहा, तो जो वे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो वे एटलीस्ट ऐसा प्रोफेशनल रहे कि उनको जो मैंने भेजा है वो देख के लगे कि नहीं कि ये बंदा इज सीरियस अबाउट व्हाट इज डूइंग. तो फर्स्ट तो वही है कि अगर आप किसी को पिच कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप कौन से वे में कर रहे हो, आपका लैंग्वेज कैसा है, कैसे आप अपनी चीजें शेयर कर रहे हो. एक प्रिलिमिनरी बेस पे अगर कोई बंदा आपको जज करेगा यू अबाउट यू और योर वर्क, जस्ट मेक श्योर इट इज द बेस्ट, क्योंकि बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन तो वो भी बहुत मैटर करता है. तो और दूसरा हो गया कि आई यूज्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट्स वाया पेपाल. तो मैंने भी काफी टाइम उसमें मतलब पेपाल से मैंने एक्सेप्ट किया था पेमेंट्स. तो प्लीज इफ यू आर फ्रीलांसिंग एंड इफ यू आर हैविंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स, अगर आपका क्लाइंट सिर्फ पेपाल से ही पे करता हो तो यू कैन कन्विंस हिम लाइक फॉर लाइक आई विल गिव यू अ 10 to 15% डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट पेमेंट समथिंग, बट प्लीज शिफ्ट him or her to the Wise. So Wise is a very good payment method for receiving international payments. This is और the दूसरा best हो asked गया question. International या payment receive करे. या तो और हो गया कि जैसे अगर अपना वर्क फ्लो है तो जस्ट मेक श्योर कि आप उतना ही काम लो. आप आई डोंट नो इफ आई माइट बी हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स, बट अगर आप काम कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर टू मैनेज इट. ऐसा ना हो कि यू आर जगलिंग बिटवीन डिफरेंट क्लाइंट्स और आपका कोई काम डिले हो रहा है. प्रायोरिटी बेस्ड नहीं होता, इसमें होता है, बस जस्ट मेक श्योर कि आप काम ले रहे हो तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली कैलेंडर में हो कि पता हो कि हाँ मैं ये काम ये तरीके से गिवन डेडलाइन में कैसे कर सकता हूँ. और जस्ट मेक श्योर कि अगर आप किसी टैलेंट को हायर कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल सेट कैन बी डेवलप्ड. गणेश माइट बी ऑल्सो हायरिंग सम पीपल. स्किल सेट लाइक गणेश एज अ बिजनेस ओनर नोस कि ये बंदे में पोटेंशियल है, आई कैन डेफिनेटली इम्प्रूव स्किल्स. तो मेन चीज है कि आप माइंडसेट देखो. आगे जाके स्टार्टिंग में आपको इतना पता नहीं चलेगा, जब 1-2 साल हो जाएगा, जब आपका बिजनेस अच्छा करने लगेगा, दैट थिंग वुड मैटर द मोस्ट कि Hmm. लोगों का माइंडसेट कैसा है. कुछ फ्रीलांसर ऐसे होते हैं कि उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि ही इज अर्निंग फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट्स, ही इज गिविंग अ बिट लेस ये. लेकिन लाइक उनको पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे रन होता है, कितने अलग अलग हिडन एक्सपेंसेस होता है. तो जस्ट मेक श्योर कि द टैलेंट यू आर हायरिंग यू आर हायरिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म. और उनका माइंडसेट भी वो टाइप का हो कि इफ आई एम हायरिंग समवन आई जस्ट चेक कि वो बंदा कैसा है, क्योंकि मैं अगले 1-2 साल का लेके चल रहा हूँ. इफ ही लीव्स, अच्छा टैलेंट तुम्हें भी पता है कि इट्स नॉट लाइक कि वो अपने साथ ही रहेगा, बट जस्ट मेक श्योर कि हम अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं हायरिंग में. तो इट वुड ईज आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप हायरिंग में अगर थोड़ा मतलब इसको सीरियसली नहीं लोगे तो आगे जाके आपके बिजनेस में बहुत इश्यूज आएंगे. I'll say one of the common mistakes was that, once I started getting some success with it, I didn't like try to upgrade myself or upskill myself. That's like the biggest regret, which delayed my progress by say like 1 year or something. Like I'll give you an example. Uh, Between Fiverr and Upwork, Fiverr got very like really worked out for me. So I was getting constantly orders and all. So I used to take every kind of order, like
there was like there was client brief that was also coming. I was to continuously send briefs, like send my proposals that was going on. And so I got, you know I started completely giving all my time into getting those, working on this project. So what it led to is no upskill. Like I couldn't polish up my skills or my editing skills. I couldn't keep up with the trend. So what happened, like at that time, giving example, the captions or whatever was going on in 2020, like Alex Hormones style or whatever, it within a year there came some tools that were doing that same thing. So what happened was I have to again figure it out. Like then I started upskilling, learning the new trends, learning new skills, After Effects, whatever was going on. So that I think is a thing that try to constantly upgrade yourself. I'll say that's the biggest mistake that people do. That if they once something starts working for them, they like for example they hop on into agency work and they get full on into it. That they don't understand what goes behind it, all that stuff. Like they indulge them, they do upskill. So what happens is if it doesn't work or if it stops working, then you come to point zero again. Then it's very frustrating. So keep upgrading yourself. I'll say that's the advice plus mistake that I made. और गलती तो हर लेवल पे ही होता है, जैसे कि जब स्टार्ट किया था तब भी गलती होती थी, अभी होता है तो अभी भी गलती होता है। जैसे कि अभी आज मैंने एक गलती किया कि आज मैंने किसी को रीच आउट किया और फिर उसके नेम को मैंने गलत लिख दिया। ये मतलब तो होता है एक खाई एस एच मैंने कर दिया और सिर्फ एस होता। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि जो मेरे नेम को गलत करते हैं मैं उन्हें प्रेफरेंस देता ही नहीं हूँ। तो मुझे उसमें बहुत बुरा लगा कि मुझे सच में एक बार चेक करना था। तो गलती तो हर लेवल पे ही होता है, जब स्टार्ट किया था तब भी बहुत सारी गलतियां होती थी, अभी होती है। उतना कुछ खास याद नहीं है लेकिन ऐसे बहुत कोई सारी गलती सबसे होती है। बड़ा बस ये, फकअप हाँ, जो आपने किया हो जो आपको याद हो? बड़ा फकअप बस यही हुआ कि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले लेता था। मुझे लगता था हाँ ये स्टाइल तो मैं कर ही सकता हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट ले लेता था और फिर जब बैठता था करने, ओ माय गॉड ये तो हो ही नहीं रहा मैं उसे फिर डिले करता था, ठीक है कल देखता हूँ कल देखता हूँ, और फिर तब तक मैं डेडलाइन आ गया, क्लाइंट पूछ रहा है कहाँ है प्रोजेक्ट, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो पाया। अब फिर उस समय तो क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो गए, उसमें क्लाइंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए गया। और हम्म। फिर एक गलती मैंने अभी रिसेंट में किया था कि एक अच्छा क्लाइंट था और उसका डेडलाइन भी बहुत ही क्लोज था। मोस्टली आई थिंक मिस्टेक डेडलाइन से रिलेटेड ही होता है कि हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते। तो उसका भी डेडलाइन था कि मुझे रात में 2 बजे या 3 बजे वीडियो चाहिए था, और अचानक मुझे 12 बजे आँख लग गया और मैं सो गया। क्लाइंट ने 2-3 बजे मैसेज किया, मैंने नहीं देखा, और सुबह 5 बजे देखता हूँ तो मैसेज आया हुआ है। फिर मैंने मैसेज किया, वो क्लाइंट ने बोला कि नहीं मतलब आप एक्टिव नहीं हो उतना, या मतलब काम को सीरियस नहीं लेते हो। तो फिर वो क्लाइंट डायरेक्टली बोला कि नहीं आपके साथ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। या तो क्लाइंट से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम्युनिकेशन करना होगा कि अगर लेट भी हो रहा है तो आप उन्हें अगर 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले बता देते हो कि हाँ थोड़ा सा लेट होने वाला प्रोजेक्ट में बिजी था, तो वो मान जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना बोले गायब हो, बिना बोले आप लेट से दे रहे हो, तो उस पर क्लाइंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप अपना कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, और कोई इंट्रोवर्ट है या कोई थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है? what typically what I've noticed in people is like जब वो हायर सेकेंडरी में होते हैं like वो like kind of उनका mindset वैसा होता है कि we should talk to a certain set of people like ideally जो सोसाइटी के टर्म्स से जो होते हैं ना कि ये अच्छा कर रहे हैं तो उनके साथ ही बात करो। द रियल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट जहां तक मैंने नोटिस किया है। You should like communicate with people from different like you can say different kind of people। so आपको एक बेसिक ह्यूमन नेचर के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। that would very help you much in the like communication part। you don't know like अब बिजनेस ओनर से जाओगे आपको एक 40 साल के बंदे के माइंडसेट के साथ लेके जाना है। अब what I faced difficulty in past 1 year was like कि मैं पिच कर रहा था VFX स्पीड रैंपिंग के लिए एंड यू ऑलरेडी नो द इंडियन मार्केट्स उसमें मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है। लेकिन अगर यू माइट हैव ऑलरेडी सीन माय कंटेंट तो ये कंटेंट को और वो भी एक प्राइस सर्टेन प्राइस पॉइंट के साथ बिकॉज आई एम हैविंग अ टीम। सो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट के साथ पिच करना और 40-45 ईयर ओल्ड को कन्वर्ट करना उसके लिए इज अ टास्क। सो द मेन थिंग वाज लाइक मेरा काम बहुत अच्छा था एवरीथिंग वाज गुड। आई जस्ट हैड टू कन्विंस द पीपल कि आप कैसे मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको हाउ कैन यू मोनेटाइज दैट एंड आप कैसे अपने अकाउंट पे ट्रैक्शन ला सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप अगर कॉलेज में आ रहे हो जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स। डोंट स्टिक टू वन थिंग। मेन एडवाइस वही है कि किसी एक चीज के साथ मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है
व्हाट आई सीन इज लाइक अपनी एज ग्रुप पे लोग काफी फॉल्स ईगो के साथ बहुत रहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, सब मतलब इवन व्हाट आई सीन इन माय कॉलेज और लाइक इन माय सराउंडिंग पीपल आर लाइक कि नहीं यार ये चीज तो अब तुम गिम्बल लेके रास्ते में घूम रहे हो तो सम पीपल फाइंड इट ऑकवर्ड कि Yeah. यार ये क्या है, मतलब कुछ का भले मतलब उन लोग का भी खुद का कुछ है नहीं, लेकिन उन लोग को है कि नहीं लाइक हाउ कैन आई डू दिस, सोसाइटी के टर्म्स में तो ये बहुत मतलब लो लेवल चीज है। डोंट फॉल इनटू सच, मतलब आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, गणेश ऑल्सो कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, बट कभी फॉल्स ईगो मत रखो। इफ यू आर, अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो वो एक लो पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहा है, एवरीवन ग्रोस फ्रॉम स्क्रैच। आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। फॉर सोसाइटी इट माइट बी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा उस पर फोकस मत करो। इफ इट्स गिविंग यू एक्सपीरियंस, इफ इट इज प्रोवाइडिंग यू द स्किल्स, प्लीज गो फॉर इट। बहुत सारे जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग कॉलेज में ही हैं, तो उनको दिक्कत होती है कॉलेज और फ्रीलांसिंग स्टार्ट साथ में मैनेज करने में। सो आप कैसे करते हो, और आप कैसे, क्या एडवाइस करोगे एक कॉलेज स्टूडेंट को कि वो कैसे मैनेज कर सकता है? What I would advise is like first start like sort of part time, थोड़ा बहुत उसमें टाइम देते जाओ। पहले अगर आपका फर्स्ट सेकेंड ईयर है तो आई नो लाइक थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि दिन में कुछ ना कुछ टाइम अपनी हॉबी के लिए दो। लाइक एक ये स्किल भी काफी अच्छी है। लाइक वी डोंट नो कि आफ्टर 5-7 साल में व्हाट स्किल माइट बी ट्रेंडिंग, और अपने को वी कैन नॉट कंफर्म कि कौन से इंडस्ट्री में वी माइट बी वर्किंग ऑन। लाइक वी एटलीस्ट शुड, व्हाट माई थिंकिंग इज लाइक हमको एटलीस्ट 2 से 3 स्किल्स होनी चाहिए कोई ना कोई फील्ड में, लाइक टू जस्ट सेफ गार्ड, यू नो, लाइक इट इज नॉट अ गारंटीड थिंग कि हम उसमें सीएससी में ही वर्क करेंगे। लाइक मैंने रिसेंटली देखा मेरे नोन में जो काफी मतलब उनका स्किल सेट अच्छा है, लेकिन ले ऑफ होते हैं कंपनी में, मतलब काफी बहुत सारे अलग अलग चीजें होते हैं। तो और मुझे पहले से था कि आई बीन फ्रीलांसिंग फ्रॉम पास्ट 4-5 years, तो मुझे था कि नहीं ये चीज मैंने किया हुआ है, तो इट सॉर्ट ऑफ बिल्ड्स अप द कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे एक चीज मतलब इवन इफ द लाइक स्किल मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन आई नो द होल मेथड, लाइक हाउ टू पिच क्लाइंट्स, हाउ टू गेट मनी इन द बैंक, लाइक वो बेसिक थिंग है। तो मुझे ये है कि कुछ ना कुछ अगर हम स्किल को अगर मोनेटाइज कर सकते हो तो दैट इज द बेस्ट। तो मैनेज करने की बात आई तो इन इनिशियल ईयर्स आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो। इफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, और इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, प्लीज मतलब दिन का 1-2 घंटा आपके पास रहता ही है। लाइक पीपल वेस्ट इट ऑन सम, लाइक कोई ना कोई अलग अलग वेज है, लाइक कोई रील देख रहा है कुछ, लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ना कुछ करो एटलीस्ट अगर अपने। और व्हाट मेरा मेन पर्पस ये था, इट यूज टू मतलब इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। ये करते हैं तो लाइक अगर मतलब मैंने देखा है कि फ्रीलांस करते हैं लाइक इट्स लाइक ऑफ गेम, कि कैसे लेवल अप होता है कि हम कुछ छोटा टास्क अकम्प्लिश हो गया। अब जैसे आई रिसेंटली शिफ्टेड, लाइक मैं अभी डोमेस्टिक मार्केट में कर रहा था, आई वाज बिल्डिंग अप माय पोर्टफोलियो। हम्म। Currently, I have switched over to international market. It has been almost about 20 days since I am approaching the clients. So right now I have closed around 2 clients, and funnel में 3 से 4 मतलब पाइपलाइन में 3 से 4 क्लाइंट्स है। तो जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, शॉर्ट टर्म गोल्स को अकम्प्लिश करो, और वो एक काइंड ऑफ एक हैबिट बन जाएगी अगर आपको वो काफी इंटरेस्टिंग लगता हो। तो डेफिनेटली लाइक अब मुझे ऐसा, मेरा एक वो नहीं है कि मतलब कैसे मैं करूंगा, वो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। आई वाज लाइक हाउ कैन आई डू इट बेटर, सो हम्म। करेंटली आई एम इन दैट फेज। Luckily, the college that I chose is not very strict on the attendance part. So yeah, I keep like very like last semester my attendance was 75.5%, which is like just 0.5% above the minimum requirement. So yeah, I just attend college as much is required, and everybody knows my college में नहीं सिखाते इतना कुछ काम का. Eventually it's just people just go there for a degree, and for sure you make friends, you have fun, there are other learnings, but yeah, when it comes to academics, like it's not very useful. You just attend class. In fact, बहुत सारे classes में I was like this YouTubing वाला part कि like going on YouTube and learning skills. In many lectures I've gone and like पीछे बैठ के I was watching some other lectures. So many of the times I just go to the college for attendance purpose. So yeah, if I had to give any advice on that, I would just say that uh, do really think about where your time goes in college, because you might say that I spend 8 hours in college,
but the lectures might only be for 6 hours, and the rest 2 hours you are just chilling with your friends and doing all that stuff. Yeah. So if you want to level up doing something, you have to like sacrifice on that part somewhere. At least balance it out. Yeah. I think those are the major two things. And bro, you are one of the freelancers in who works in my agency जो बहुत टाइम एफिशिएंटली काम करता है. बहुत सारे फ्रीलांसर्स की ये दिक्कत होती है कि वो लोग काम ले लेते हैं, इधर से भी काम ले लेंगे, उधर से भी काम ले लेंगे, बट किसी को भी डिलीवर नहीं करेंगे. बट आप ऐसे बंदे हो जो, मेरे को पता है कि सिर्फ 2 दिन है या एक भी दिन है डेडलाइन, बहुत टाइट डेडलाइन है, उसमें आप काम कर लेते हो. एंड मुझे पता है कि आई कैन रिलाई ऑन यू, आप मैनेज कर लोगे. सो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फ्रीलांसर्स को, टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं वो लोग, एंड टाइट डेडलाइंस में कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसीज में डेडलाइंस टाइट ही होती है. हम्म, तो मैं यही बोलूंगा कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं भी ऐसे ही करता था. प्रोजेक्ट आता था, मैं ठीक है इधर से भी ले लिया उधर से भी ले लिया, और फिर सबका डेडलाइन मिक्स हो जाता था. इसका भी लेट हो गया उसका भी लेट हो गया, एंड क्लाइंट मैसेज कर रहा है जब कि भाई वीडियो किधर है, तो मैसेज इग्नोर कर रहा हूँ एंड 4-5 घंटे बोल रहा हूँ ठीक है दे रहा हूँ, एंड फिर उसके बाद फिर वो मैसेज कर रहा है, फिर उसे बोल रहा हूँ ठीक है दे रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं सेंड करता हूँ. तो फिर धीरे धीरे मैंने भी प्रोजेक्ट लेना कम किया कि ठीक है बस प्रोजेक्ट लेना है लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट लेना है. पहले जो भी आते थे कि हाँ ठीक है कम पैसे भी पे कर रहे हैं तो ठीक है दे दो, तुम भी दे दो तुम भी दे दो, लेकिन अब मैंने सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ही लेता हूँ कि हाँ अगर अच्छा पे कर रहे हैं हम्म. एंड अच्छा है सब कुछ तो मैं उनका प्रोजेक्ट लेता हूँ, नहीं तो ऐसे मैं मना कर देता हूँ कि ठीक है आपका प्रोजेक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ. जैसे कि बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स हैं जो कि अभी भी चाहते हैं कि मैं थोड़े कम रेट में काम करूँ, तो मैं बोलता हूँ नहीं अब मैं इतने पे नहीं काम करता हूँ, तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ बस. So you are one of the editors who gone from, I would say, level 4 to level 10 really fast in our agency. Like we are working from last 3-4 months, I guess. So what advice would you give to someone who's trying to master any skill? How should they go about it? I have this very simple mechanism that if I want to learn any software, let's say as of now I'm learning Unity, which is a software in AR/VR. So I just go onto the software, I install the software on my PC, and I just go around and then just go around Googling and YouTubing, searching on YouTube the smallest things, how to create a new file, how to do this, how to do that. So when you start on making some basic project, let's say make your introduction, if you're learning video editing, just go around, make a introduction video of yourself. So when you're making the video, you'll figure out, okay, how do I put text? So you'll go on YouTube, how to add text in Premiere Pro. And then you'll go around, oh no, I want to animate this text. So you'll go on YouTube, you'll go around like how to animate this text. So that is, in my opinion, like the most organic way to grow. I haven't done courses and all. So yeah, that is my way of. So bro, you said कि आपके personal brand ने आपको काफी help किया है to get clients. So would you recommend someone who's starting freelancing to build his personal brand? And how will that exactly help them? हाँ जो भी वीडियो एडिटिंग कर रहा है मैं बोलूँगा कि हाँ आपको पर्सनल ब्रांड की ओर जाना चाहिए और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सिंपल एडिटर हो तो आप एडिटर ही बन के रह जाओगे, और अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स भी ला सकते हो कि हाँ ठीक है ये क्लाइंट पे आ गया वो क्लाइंट पे आ गया, फिर उसके बाद आप एजेंसी में स्केल कर सकते हो. और सबका एम यही होता है कि आप फ्रीलांसिंग से एजेंसी के ओर जाओ. आप नहीं चाहोगे कि आप दिन भर काम करते रहो, डेली 12 से 14 घंटा काम करते रहो. आप चाहोगे कि हाँ आप एजेंसी की ओर जाओ एंड थोड़े बहुत काम को डेलीगेट करो धीरे धीरे. तो पर्सनल ब्रांड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फेस दिख रहा है क्लाइंट तो क्लाइंट थोड़ा बहुत ट्रस्ट करेगा, लेकिन अगर आपका फेस ही नहीं दिख रहा है कहीं पे भी तो क्लाइंट ट्रस्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. पहले कैसे होता था मार्केट में कि एक चीज पकड़ ली एंड लाइफ टाइम वही करना है, बट नाउ एंड मूविंग फॉरवर्ड भी वैसे नहीं होने वाला है, बिकॉज एआई इज गोइंग टू चेंज एंड पूरी मार्केट ही अपने आप इवॉल्व हो रही है. एंड यू आर अमंग्स द पीपल हु कैन जंप इनटू समथिंग न्यू एंड किल इट. सो हाउ डू यू डू दैट? मतलब एक ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप करें और आप करते कैसे? हाउ शुड वन गो अबाउट इट? I will say that, keep your mind open. Like, I see that people, either they are like shiny object syndrome, like, they only see a reel and they get into it, but they don't know the intricacies, like what needs to be put into that. They don't know a roadmap for that, anything like that. They just see the reel and this, like, because whatever online you see, if it's by someone like someone coach, he's trying to sell you that. So you have to look through that thing, that is it really the potential or not. So from there it starts. Like, you have to be, you see the trend, but you should be like, how do I figure it out? Okay. And if something is working, you have to first like manage it, like first automate it or something like that, and then switch to another thing. So for me it's just like that, that
whenever I see some trend going on, I see for patterns, like who else are talking about it, are the like top people adapting it, like the top top marketers and all that stuff. Like they are, like for example AI, that how they are integrating, like top marketers, how they are using it, if they are using in creatives, videos, wherever they're using it. Like, okay, so I see that trend, I see those patterns, and I try to figure it out. Then it's all about like research. Right now it's like very easy with chat gpts and all. You can try to figure out like how to frame the roadmaps. You can find resources easily. But the conventional way that I used to go was YouTube, like search for those topics, understand those topics better, and make myself learn about it. And I used to always keep some hours of my day, or like within at least a week, to know more about it, to experiment more about it. And that's how I try to figure it out. But yeah, every year, if you see, like that's my experience, every year that you see, there is a new kind of business model, you say, or a new opportunity that is coming up. So if you see, if you're open to that, you can definitely hop on to that trend. And remember, like once you're like hopping onto a trend, like the competition is very low. It's very easy to stand out among people, because if you have a strong basis of marketing, because marketing works for anything, like whichever you're trying to sell a product or you're trying to sell a service. Marketing remains, like if you have that marketing mindset, that how I will put myself out there, and how I will try to stand out. If you have that in mind, then you can stand out among everyone. Yeah, that's how you try to adapt या ब्रो, बट and एक evolve. फियर भी तो आता है. लेट्स से अभी मैं स्विच कर रहा हूँ फ्रॉम कंटेंट मार्केटिंग टू डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो मेरे अंदर एक फियर आएगा कि ये बनाया हुआ बिल्डिंग है, तो ये तोड़ के अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो आई विल बी लाइक, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर नहीं चला तो हाउ डू यू डील विद दिस थॉट्स? Yeah, that's always there. Like I won't lie about here, that fear is not there. And if you're already seeing results, like if you're already used to getting quick results, or whatever you're एंड doing, दैट्स you're getting ऑलवेज बीन results. द And केस विद यू कि आप जिसमें भी आप घुसे हो आपने फोड़ा है, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे. yeah, that's one of the things. And it's not like that I've succeeded in everything, but yeah, most of the things I have entered into that. But that the calculated risk I'm talking about. Like there are so many, as I told, like right now also there are 3 or 4 business models that are trending right now. If you go on YouTube, every coach or any creator is trying to do something, try his selling his school community, or one of the other thing to make money, right? So it's just that you figure out, like, is your skills matching with this? What additional skills if you want to learn, what additional skills it will be there to learn, and you start learning it. But that's the thing, it's a calculated risk, I'll say. But yeah, you should be open to it. You should have some time blocking for it, like time for it, so you are clear with your mind. And it's not just like you're just there for to sit for 1 hour and nothing is happening. Like that should be some significant result that you're seeing. And I believe that any business model which you get, like any business, you have to get like 6 months to it, to see like significant results. Like if you stick to it for 6 months with patiently, and yeah, you would see some results. And if it's significant results, then you should continue, or else you can hop on to like next thing. But 6 months, I believe, is a good time to see if the results are coming in or not. Now let's talk about how to get your next 3 to 4 clients and scale your freelancing business to 2 to 3 lakh rupees per month. ठीक है, तो क्लाइंट लाने का सिंपल फंडा है, प्रोवाइड फ्री अपफ्रंट वैल्यू. जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, वो जो भी आपका इंडस्ट्री है, उन लोगों को रीच आउट कर सकते हो आप, एंड उनको फ्री अपफ्रंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो. उनको आप अवेयर करवा सकते हो कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ थ्रू अ लूम वीडियो, थ्रू अ पर्सनलाइज्ड मैसेज, या जो भी यूनिक वे आप ढूंढ पाओ उनको रीच आउट करने का, वैसे आप उनको रीच आउट करके उनको फ्री अपफ्रंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो. लेट्स से आप एक ऑडिट कर रहे हो, लेट्स से यू आर हेल्पिंग यूट्यूबर्स टू गेट क्लाइंट्स थ्रू यूट्यूब वीडियोस. तो जो भी किसी यूट्यूबर के चैनल पे आप जा रहे हो, देख रहे हो क्या 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 गलतियां कर रहे हो, उनके थंबनेल्स अच्छे नहीं है, उनके वीडियोस का रिटेंशन अच्छा नहीं है, एडिटिंग क्या बेटर हो सकती है, कवर फोटो अच्छा नहीं है, जो भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है उसको एक लूम वीडियो में ऐसे शूट करके उनको भेजो. Hi XYZ, I just checked out a YouTube video and I think this improvement can be made and which can 2x your revenue in next 2 to 3 months. जो भी आपका ऑफर है उसको आप पिच कर सकते हो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी रैंडम स्ट्रेंजर को आप रीच आउट कर रहे हो, उसको आपको बताना पड़ेगा कि यू आर द एक्सपर्ट एंड यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम.
उसके साथ साथ आप अपने जो पास्ट क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है उसको भी दिखा सकते हो, अपने जो क्लाइंट के लिए रिजल्ट्स लेके आए उसको भी दिखा सकते हो। इससे कहते हैं ट्रस्ट बिल्डअप होता है और लोगों को समझ आता है कि देखो भाई सिंपल फंडा है, देखो भाई सिंपल फंडा है, आप जो क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो उसको और 100 लोग रीच आउट कर रहे हैं, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि ये 100 में से क्लाइंट मेरा मैसेज क्यों देखेगा, मैं कैसे अलग दिख सकता हूं, मैं स्टैंड आउट कैसे कर सकता हूं। Making money is about maths and psychology. It is about understanding what is the psychology of your customer, what your customer wants and providing it to them. And max कहाँ पे आता है कि let's say कि अगर मेरे को एक महीने में 3 क्लाइंट क्लोज करने हैं और मैं अगर 1000 लोगों को रीच आउट करता हूं तो मेरे को उसमें से 10 रिस्पॉन्सेज आते हैं और मैं 3 लोगों को कॉल पे लेके आ पाता हूं, तो मेरे को 10,000 लोगों को रीच आउट करना है जिससे मैं 30 कॉल्स या 40 कॉल्स बुक कर पाऊं एंड उसमें से इजीली 3% तो कन्वर्ट कर दूंगा, 10% तो कन्वर्ट कर दूंगा और मेरे 3 क्लाइंट्स हो जाएंगे। तो सिंपल नंबर गेम खेलना है हमको। एंड ये जो 10,000 लोग अपन ने डिसाइड किया कि इनको रीच आउट करना है, इनको रीच आउट करना ही है। बहुत सारे लोग 2000 के बाद गिव अप कर देते हैं एंड दैट इज व्हाई 90% ऑफ द पीपल फेल। यू नीड टू प्लान, यू नीड टू सेट अ गोल एंड यू नीड टू फकिंग बी कंसिस्टेंट। क्योंकि देखो यार 90% लोग अगर 2000 में गिव अप कर रहे हैं तो अगर आप 4000 5000 भी कर सकते हो तो भी आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही चीज गोल 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 करना है। अगर आपने 5000 मैसेजेस भेजे और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, थोड़ा ट्वीक करके देखना है, या 2 चीजें ए बी टेस्ट करनी है। पहले 5000 को ये मैसेज भेजा, दूसरे 5000 को ये भेजा, देखा कि किसमें ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके ऊपर डबल डाउन किया। या 3-3000 के आपने 3 मैसेजेस का ब्रैकेट बना लिया कि इसको ये 3000 को ये भेजूंगा, बाकी 3000 को ये और बाकी 3000 को ये। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग एनीथिंग टू जस्ट गेट द वर्क डन। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर मतलब आइडियल प्रोस्पेक्ट वांट्स। उस हिसाब से आपने चैट जीपीटी का हेल्प लिया, 3 स्क्रिप्ट्स बनाई, उसको ए बी टेस्ट किया एंड देखा कौन सा काम कर रहा है, उसके ऊपर डबल डाउन किया। इन वन वर्ड, यू नीड अ सिस्टम जिससे आप जो भी आपने गोल सेट किया है उतने मैसेजेस आप भेज पाओ। आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस जा रहे हैं, लिंक्डइन पे इतने जा रहे हैं, फेसबुक पे इतने जा रहे हैं। ठीक से प्लान बना लिया, एक सिस्टम बना दिया, जिससे आपका मोटिवेशन का फंडा है ही नहीं। क्योंकि अगर आप खुद से करोगे या इमोशनल होकर करोगे, अरे 3000 लोगों को भेज दिया भाई, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो नहीं हो पाएगा। सिस्टम बनाओ और कोशिश करो कि खुद को उससे निकाल दो। किसी को हायर कर सकते हो या एआई टूल्स के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो तो बेस्ट है। एंड द लास्ट वे इज रन एड्स। आप अपने क्लाइंट के बिजनेस में सेल्स लाने के लिए एड्स रन करने वाले हो, तो खुद के बिजनेस में क्यों नहीं करते? जब भी आप 1-2 लाख मंथली पहुंच जाते हो तो द बेस्ट वे टू स्केल बियॉन्ड दैट इज टू रन एड्स इफ यू आर डूइंग इट इन इंडिया। अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हो तो यू कैन डू इट आफ्टर रीचिंग अप टू 5 to 6 लाख पर मंथ, क्योंकि वहां पे एड स्पेंड ज्यादा होगा आपका। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस बढ़ता कैसे है। बिजनेस बढ़ता है कस्टमर्स से। कस्टमर्स कैसे आएंगे? जब भी आपकी ज्यादा कॉल्स बुक होंगी। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि मैं क्वालिफाइड कॉल्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस आफ्टर यू स्टार्ट मेकिंग मनी is to run ads. So guys, that's it for today's video. And अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।